Good morning, students. Welcome to ME 309 class. Today's topic is present worth method. अपन ने कल वेरियस रिप्लेसमेंट मेथड स्टडीज़ के अंदर दो प्रकार की विधियों का अध्ययन किया था। पहली विधि थी पे बैक पीरियड मेथड, समयांतराल पश्चात पुनर्भुगतान विधि। सेकंड पढ़ी है टोटल लाइफ एवरेज मेथड, कुल औसत आयु विधि। आज पढ़ेंगे अपन वर्तमान मूल्य विधि, प्रेजेंट वर्थ मेथड। वर्तमान मूल्य विधि, दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट and reasonable and is used to evaluate the present value of new equipment. For the purpose of comparison, future costs are translated into today's money. A present worth rupees is today's values of money invested at certain interest rate after given number of years from today. This can be clearly understood by the following example. If we have rupees 5,000 to invest and want to know what will be its worth in 10 years at 10% interest, this is calculated by F equal to P bracket start 1 plus I bracket close raised to n, where F बराबर F equal to worth of money in future, P equal to present amount of money, I equal to interest rate, n equal to number of years. Substituting in this formula, we have F equal to 5,000 bracket start 1 plus 0.10 raised to 10 equal to rupees 12,970. Thus a rupees 5,000 today's worth is 12,970 after 10 years from now, or in other words says rupees 12,970 present worth of rupees 5,000, while company two alternative costs, all the cost must be translated into present worth and they must be compared for equal length of service. Example, if a machine has its life of 3 years and B has 6 years, then to compare two machines we must compare the present worth value of 6 years service of to A machines and 1 B machine. हिंदी में समझते हैं इसको। वर्तमान मूल्य निधि वह विधि है जिसे वर्तमान में उपलब्ध नए उपकरण की वर्तमान कीमत को अधिक परिष्कृत रूप से एवं अधिक विश्वसनीयता से मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए भविष्य के मूल्य को वर्तमान कीमत में परिवर्तित करके ज्ञात की जाती है। आज से कुछ वर्षों हेतु भविष्य के लिए निवेशित की गई पूंजी, जिसमें निश्चित ब्याज दर भी शामिल होती है, वह आज की प्रेजेंट वर्थ रुपीज़ या वर्तमान के मूल्य कीमत है। इसको निम्न उदाहरण से समझाया गया। माना हमारे पास 5,000 रुपये निवेश करने हेतु है। अगर हम जानना चाहें कि 10% ब्याज के साथ 10 वर्ष पश्चात कीमत क्या होगी, इसको निम्न
फार्मूले से ज्ञात किया जाता है। F बराबर P इक्वल टू 1 प्लस आई इन रेज टू n। F भविष्य में मूल्य वृद्धि, P वर्तमान मूल्य राशि, I ब्याज दर। तो P बराबर ये आ जाएगी 12,970। इसको कैलकुलेट करने के बाद यह प्राप्त होती है 12,970। इस प्रकार से 5,000 रुपये आज के मूल्य की 10 वर्ष के पश्चात के मूल्य के लिए 12,970 रुपये होगी। दूसरे शब्दों में हम कहें तो 12,970 रुपये 10 वर्ष पश्चात के अब वर्तमान मूल्य 5,000 रुपये हैं। जबकि तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर ये दो प्रकार के परिवर्तनीय रूपों को वर्तमान मूल्यों में अनुवाद किया जाना चाहिए। दोनों को एक समान आयु के काल के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। अब ए मशीन की आयु 3 वर्ष तथा बी मशीन की आयु 6 वर्ष है। तब दोनों मशीनों को 6 वर्षों हेतु तुलना करनी चाहिए। ए एवं बी मशीन के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल 3.2.43 A machine operated manually cost rupees 2,000 has a life of 2 years, while an automatic machine B costs rupees 5,000 but has a life of 4 years. Operating cost for machine A is rupees 4,000 rupees per year, while machine B is rupees 3,000 only, which should be purchased and considered 10% solution. For comparing the two machines for equal period, we must consider two machines A against one machine B. Each of the expense is to be converted into present worth. ठीक है, machine expenses converted in terms of present worth। पहला करना है present worth of cost of first piece of machine A rupees 2,000 दिया हुआ है। सेकेंड present worth of operating cost of first machine, फर्स्ट पीस या फर्स्ट मशीन A इन फर्स्ट ईयर के अंदर P बराबर F इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1/1 प्लस I रेज टू n। ये 4,000 इक्वल टू 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1 4। ये है दिस इज 3,636 है। इन सेकंड ईयर 4,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 ब्रैकेट क्लोज रेज पावर 2। कैलकुलेट करने के पश्चात आएगी 3,306। तीसरा पॉइंट आता है प्रेजेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट ऑफ सेकेंड पीस ऑफ मशीन ए परचेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ ऑफ फर्स्ट पीस 2 ईयर्स के बाद में 2,001 प्लस 0.10 रेज पावर 2। तो ये आएगी 1,652 कैलकुलेट करने के पश्चात, मतलब सेकंड पीस के लिए। अब प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑपरेटिंग मशीन फॉर सेकंड पीस इन थर्ड ईयर 4,000/1 प्लस 0.10 रेज पावर 3 इक्वल टू 3,000 रुपीज़। इन फोर्थ ईयर 4,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 रेज पावर 4
After calculating, we will get 2732. Thus, total expenditure in terms of percent worth required when machine A is used. अगर हम A मशीन को ही काम में लेते हैं तो टोटल वर्थ क्या होगी, 2000 दी हुई है, प्लस ऑपरेटिंग जो कॉस्ट आई है 366, पहले साल का 3636, सेकंड दूसरे साल के लिए 3306, प्लस सेकंड पीस में सेकंड ईयर के बाद 1652 ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। जो प्रेजेंट वर्थ ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 3000 प्लस 2732, 3005 प्लस 2732, इनका टोटल आएगा 16331 अगर हम मशीन ए काम में लेते हैं। अगर मशीन बी, इसी प्रकार मशीन बी का निकालते हैं, एक्सपेंसेस कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ परसेंट वर्थ। अब खर्चों को परसेंट वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो पहले परसेंट वर्थ ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, कीमत कितनी है बी की, 5000 रुपये। सेकेंड है परसेंट वर्थ ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब चारों साल के लिए हम इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। उसी प्रकार पहले फर्स्ट ईयर में ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन वन प्लस, प्रथम साल के लिए उसी फॉर्मूले 3000 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज़ टू पावर 1, ये होगी 2727। दूसरी साल के लिए होगी सेम फार्मूले के अंदर वैल्यू रखने के बाद 2479। तीसरे साल में होगी 2254। चौथे साल के अंदर 2049 ओनली। अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मशीन बी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ, फर्स्ट को सेकंड के ए बी सी डी को जोड़िए, 5000 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2727 प्लस 2079 प्लस 2254 2049 ब्रैकेट क्लोज, टोटल ये दिस विल बी 14509। Thus, the machine B is economical as its expenses are less and hence machine B must be purchased। अर्थात मशीन B को खरीदना चाहिए। इन दोनों मशीन को कंपेयर कर प्रेजेंट वर्थ में कंपेयर किए तो मशीन B जो है सस्ती पड़ेगी। थैंक यू।